गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 7 we have to note two things, that is when tangent is parallel to x axis then slope of tangent is equal to 0। जब टेंजेंट पैरेलल होती है x एक्सिस के तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है, और इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन स्लोप ऑफ नॉर्म इज इक्वल टू 0। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट ऑफ द कर्व y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis। सो गिवन इक्वेशन आपके पास है कर्व की, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 9x प्लस 7। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so it become dy upon dx that is equal to x cube derivative of x cube that is 3x square and derivative of 3x square that is 6x minus 9। so this is the derivative। now we have to calculate the slope। अब हमें slope निकालना है। स्लोप निकालने के लिए यहां पे हमें एक कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। सो लेट एक्स वाई इज एनी पॉइंट on first, so therefore slope of tangent that is equal to dy upon dx at xy। so replacing here x by x, so this is 3x square minus 6x minus 9। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब आपको क्या गिवन है कि कर्व जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो गिवन दैट इज कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर व्हेन द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट that is equal to 0, that is 3x square minus 6x minus 9 is equal to 0, taking 3 common, so it is x square minus 2x minus 3 that is equal to 0। so 3 is not equal to 0, therefore x square minus 2x minus 3 is equal to 0, so it is quadratic in nature। so splitting the middle term, हमने middle term को split कर रहे हैं, so it is x square minus x plus x minus 3x minus 3 is equal to 0। so which implies x common, it is x plus 1 minus 3 common, it is x plus 1 is equal to 0। so it is taking x plus 1 throughout common, it is x plus 1 x minus 3 is equal to 0। so either x plus 1 is equal to 0 implies x is equal to minus 1, or x minus 3 is equal to 0, so x is equal to 3। so x is equal to 3 and x is equal to minus 1, हमने दो वैल्यूज मिल गई हमें, एक x3 मिला और x is equal to minus 1। इन दोनों वैल्यूज को आपने एक एक करके जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करना है। so when x is equal to 3, so first implies y is equal to 3 cube minus 3 into 3 square, sorry 3 power 2 minus 9 into 3 plus 7। so 3 into 3 into 3 that is 27, again it is 27 and it is minus 27 plus 7, so they cancels out, so it is minus 20। so therefore point is, first point is it is 3 minus 20, that is x is equal to 3 and y is equal to minus 20। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, that is put x is equal to minus 1 in first। so your first equation minus 1 cube minus 3 into minus 1 square minus 9 into minus 1 plus 7। so minus 1 cube that is minus 1 minus 1 square that is positive 1, so it become minus 3 plus 9 plus 7, so 9 plus 7 16 minus 4 that is 12, therefore
point is equal to minus 1, 12. So therefore 3 minus 20 and minus 1, 12 are the required point. So this is all about question number. So question number 8 now. Find a point on the curve y is equal to x minus 2 whole square and the point which is tangent is parallel to the chord joining the point 2, 0 and 4, 4. So here is curve and here is the point of the chord. So first of all सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है पैरेलल टू द chord है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो स्लोप ऑफ chord के बराबर होगा. सो सबसे पहले इट इज फर्स्ट इक्वेशन जो आपको दी हुई है इक्वेशन ऑफ कर्व. सो लेट एक्स वाई इज एनी पॉइंट, let xy is any point on first. So हमने क्यों माना है xy? क्योंकि हमें स्लोप चाहिए और स्लोप के लिए क्या चाहिए? हमें एक कर्व और एक पॉइंट चाहिए. तो पॉइंट यहाँ पे गिवन नहीं है तो इसलिए हमने xy पॉइंट मान लिया. सो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to x, so it is dy upon dx that is equal to, it is using the power formula, it is 2 x minus 2, 2 minus 1 and 2 derivative of angle that is x minus 2. So it become 2 x minus 2. So what is the derivative of x? That is 1. And what is the derivative of 2? 0. तो का derivative 1 है और 2 का derivative 0 लिखने की जरूरत नहीं है. So हमें क्या मिला? It is 2x minus 2. So therefore इसलिए क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि dy अपॉन dx गिवन पॉइंट पे. सो आपके पास dy अपॉन dx है 2x माइनस 2. अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x को x से, y को y से, y यहाँ पे नहीं है. सो इट इज स्लोप. सो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया. अब आपको कॉर्ड के पॉइंट्स दिए गए हैं, हम सबसे पहले स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालेंगे. सो स्लोप ऑफ कॉर्ड थ्रू 2, 0 and 4, 4. So what is slope? That is y2 minus y1 x2 माइनस x1. आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस में +1 में पढ़ा हुआ है कि y2 माइनस 1 और x2 माइनस x1 आपको 2 पॉइंट फॉर्म जो आपको आती है उसमें आप स्लोप निकालना जानते हो. सो y2 इट इज x1 y1, इट इज x2 y2. तो 4 माइनस 0 एंड 4 माइनस 2. सो इट बिकम 4 अपॉन 2 और विच इंप्लाइज इट बिकम 2. नाउ व्हाट इज गिवन in a book that tangent is parallel to the chord. जो tangent है वो parallel to the chord है. Since tangent is parallel to the chord, therefore slope of tangent is equal to slope of chord. वैसे भी आपको पता होगा कि दो लाइनें कभी भी पैरेलल हों तो उन दोनों के स्लोप बराबर होते हैं. सो यहाँ पे इट इज 2x माइनस 2 और स्लोप ऑफ कॉर्ड आपके पास 2 है, दे कैंसल्स आउट. सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज x इज इक्वल टू 3. तो हमें एक पॉइंट मिल गया. अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो पुटिंग इन फर्स्ट, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3 in first. So first implies y is equal to 3 minus 2 whole square, that is 1 square, that is 1. Therefore required point is 3, 1. So question number 9, find the point on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equal to x minus 11.
सो हमें क्या दिए, कर्व दी हुई है और टेंजेंट की इक्वेशन दी गई हुई है और हमें पॉइंट निकालने हैं। सो सबसे पहले हम पॉइंट मानेंगे इस कर्व के ऊपर और जनरल पॉइंट मान के चलेंगे। सो लेट xy is any point on x cube minus 11x plus 5, it is equal to pi. It is first equation. It is equal to y. So हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से स्लोप निकालेंगे और फिर इस स्लोप के साथ कंपेयर कर इसके स्लोप के साथ कंपेयर करेंगे और फिर दोनों स्लोप्स को इकट्ठा कर देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, so it is dy upon dx, that is x cube, using power formula it is 3x square, 11x, x का डेरिवेटिव 1, so 11, 5 का डेरिवेटिव 0, so therefore slope of tangent that is dy upon dx at xy। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x क्यू माइनस 11 वही रहेगा। सो ये आपका स्लोप आ गया। अब गिवन और आपको टेंजेंट है, दैट इज गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। अब इसका भी स्लोप निकालेंगे हम। सो स्लोप निकालने के लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, या इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ले जाओ, या इसको सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लिया और माइनस कोफिशिएंट। हम क्या करते हैं, किसी चीज का स्लोप निकालने के लिए, मान लो आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले है इसका स्लोप निकालने के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। एक मेथड ये है स्लोप निकालने के लिए। दूसरा क्या है कि आप बी वाई को यहां पे रहने दीजिए और यहां से वैल्यूज निकाल लीजिए y की। सो फिर इसको कंपेयर कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो आपके पास x के साथ जो होगा वो स्लोप होगा, तो इट इज माइनस ए अपॉन बी। ऑल्सो हियर यहां पे भी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो आया हुआ है माइनस ए, और कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज y। सो कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज b, सॉरी इट इज b। सो आपने देखा कि दोनों फार्मूले आप लगाओ तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे m कितना है, दैट इज 1। सो स्लोप आपका 1 आ गया। इट इज y इंटरसेप्ट दैट इज 11, ये हमें चाहिए नहीं है। अब इन दोनों, क्योंकि एक ही टेंजेंट की बात की जा रही है, तो इन दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होने चाहिए। सो देयरफॉर स्लोप्स ऑफ बोथ टेंजेंट शुड बी इक्वल। That means, that implies 3x square minus 11 is equal to 1, और इस 11 को ट्रांसफर करेंगे हम दूसरी तरफ, तो ये बन गया 3x square is equal to 12। ये 3 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, so it become x square is equal to 4, so x is equal to plus minus 2। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो 2 आई है, एक -2 आई है। हम इस 2 को गिवन कर्व में पुट करेंगे और फिर -2 को पुट करेंगे। सो केस नंबर 1, सो केस 1 दैट इज व्हेन x is equal to 2, then first implies y is equal to x cube, that is 2 cube minus 11 into, it is 2 cube, 11 into 2 plus 5, that is 8 minus 22 plus 5, so it is 13 minus 22, that is minus 9. So therefore first point is 2 comma minus 9. Now when case number second, when x is equal to
minus 2, then first implies, so y is equal to minus 2 cube minus 11 into minus 2 plus 5, so it become minus 8 plus 22 plus 5, that is minus 8 plus 27, so it is 19, therefore second point is minus 219. So these are your answers. So it is all about question number 9.